Hello, welcome to my accountancy class, the Master's Word. Now today's class topic is the solution of partnership form, question number 35 of the new book P.S. Deval, edition 2020-21. My dear students, I have written the question for you so that you don't need to look into the book again and again. And now I am trying to make you understand how the question. In this question you have been given these information first. You have been given two partners, Rita and Shobha. There are two partners, Rita and Shobha. The ratio among them, 1:1 means equal profit sharing ratio. You have been given the balance sheet, sundry creditors, bills payables, loan by Rita, reserves, capitals of Rita and Shobha. Cash, bank, stock, book debts, minus provision, plant and machinery, land and building. I have written in short. Land and building, loan to Shobha. My dear students, after this balance sheet, you have been given some adjustments to realize the assets and the liabilities given in the balance sheet. These are the adjustments, and after all, you have been given the last line in which you have been given that what you have to prepare. Now, after this question, we are going to give the solution in the 4 steps. You are advised to watch my last videos related to the concept of the chapter and the previous questions. Now see here. According to 4 steps of the solution, see here. First step, read the last line and draw the format. Prepare the realization account, partners capital account and the balance bank account. You are drawing the formats of realization account, capital account and the bank account. Now, no need of this as we have drawn the format according to the requirement. Now, second step of the solution, balance sheet of the question. Close all the assets account and the liabilities account except 2, capital and bank. Now, look at the asset sides. As you know that all the assets are having the debit balances, and when these accounts are closed, these are credited. A temporary account, that is realization accounts, is opened and the journal is passed. The realization account debit to all the realizable assets account. Means in this way we close the assets account. Now see here, in this question you have been given the stock 75,000. Book debts means debtors के आपको 66,000 रुपीज दिए हुए हैं, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6. बैलेंस आपका जो बचता है नेट वैल्यू ऑफ द डेटर्स 60,000 बचती है. लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, डाउट कि शायद डूब जाएगा, बैड नहीं है. मीन्स टू से मार्केट में आपके डेटर्स ये 66,000 के ही हैं. तो जब आप इन असेट्स को क्लोज करेंगे, असेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो आप इन्हें क्रेडिट करेंगे. तो डेबिट करेंगे टेम्परेरी अकाउंट जो खोलते हैं, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट. पर जर्नल एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to stock, to book debts means debtors, to land and building and plant and machinery. 4 accounts, 1, 2, 3, 4 amounts we have written. अब यहाँ से देखें, आपने स्टॉक रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख दिया. जितनी रियलाइजेबल असेट्स हैं इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस पर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख देते हैं. प्लांट एंड मशीनरी लिख दी, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया. अब यहीं देखते हैं प्रोविजन. जितने भी आपके प्रोविजंस होते हैं उनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं. जब इन अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है तो डेबिट किया जाता है. ठीक है, तो एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइज का मतलब यहां नहीं लिखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है. तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने
लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6,000 रुपीज यहां से। इस तरीके से ये अकाउंट भी आपने क्लोज कर दिया। अब बात आती है बैंक अकाउंट की। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, ये ओपनिंग बैलेंस बैंक का 30,000 लिख दिया, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिख दिया मैंने यहाँ। आप चाहते तो लिख सकते थे बैंक और बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। आपने बैंक के लिए एक अकाउंट ओपन कर दिया, यहाँ से ये दिया। अब जब आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं, whatever the cash you are having in your hand is to be transferred to the bank, and the journal entry shall be passed here bank account due to cash account। जो बैंक कैश था आपने बैंक में ट्रांसफर कर दिया और बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया कैश ट्रांसफर करके, तो यहाँ कैश भी नहीं बच रहा। अब बात करते हैं लोन की, शोभा के। शोभा एक पार्टनर है, चलिए इसकी बात बाद में करते हैं, पहले लायबिलिटीज में आ जाते हैं हम। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, लोन। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन के अंदर। क्रेडिटर्स हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बीपी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी मींस बिल्स पेबल। लायबिलिटीज अकाउंट के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं हमेशा। जब इन अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है तो डेबिट करके क्लोज किया जाता है। एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट डेबिट, बीपी डेबिट टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ किससे, क्रेडिटर से और बिल्स पेबल से। इस तरीके से आपने टू लायबिलिटीज अकाउंट भी क्लोज कर डाले। अब आते हैं आप कैपिटल पर। इस पर आइए, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी आपने फॉर्मेट ड्रॉ किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीता शोभा 90,000 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, 30,000 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर शोभा। ये आपने इनका लेजर अकाउंट खोले और बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशंस होता है जो कि पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दैट इज 1:1। तो रिजर्व आप जब ट्रांसफर करेंगे तो रिजर्व अकाउंट क्लोज किया जाएगा। जर्नल एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मींस क्रेडिट हो गई आपकी यहाँ पर और कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। पहले तो आपने बैलेंस लिखा था यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस, अब आपने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय रिजर्व अकाउंट के नाम से इक्वल रेशियो में, तो यहाँ से रिजर्व भी हट गया। क्यों हट गया? लायबिलिटीज अकाउंट को यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे डेबिट किया वो अकाउंट क्लोज, और क्रेडिट क्या कर दी? कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया रिजर्व को, बढ़ गई कैपिटल। अब बात आती है लोन बाय रीता, ठीक है, और यह है लोन टू शोभा। अब दो चीजें रह गई हैं, ध्यान से समझें। फर्म ने शोभा को लोन दिया 10,000 रुपीज का। लेट्स सपोज सामने आपकी शोभा खड़ी है जो पार्टनर है। फर्म क्या कहती है? शोभा अपने घर जाओ, 10,000 रुपीज लेकर आओ, ये फर्म की एसेट है, फर्म ने आपको लोन दिया है। शोभा से कहा कि शोभा घर जाओ और 10,000 रुपीज लेकर आओ। तब हम आपको, शोभा को, उसकी कैपिटल का पेमेंट करेंगे जो कि ज्यादा बन रहा है। शोभा सिंपली कहेगी सर आप मुझे घर मत भेजो, जो भी मेरा लोन का पैसा है वो मेरी कैपिटल से काट दो। मीन्स टू से कैपिटल को डिक्रीज, कैपिटल को डेबिट कर दो। एंट्री क्या बनती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू शोभा, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ध्यान से देखें, शोभा की कैपिटल, शोभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शोभास लोन अकाउंट, आपने उसकी कैपिटल को कम कर दिया। और इस तरीके से कैपिटल तो हुई डेबिट माइनस और लोन हो गया क्रेडिट। असेट क्रेडिट होती है तो अकाउंट क्लोज। अब बात करते हैं इसकी। तो बच्चों यहां ध्यान देना है इसका। एक्चुअली क्या होता है, हमारा पेमेंट का एक मेथड होता है, जब डिसोल्यूशन होता है तो पेमेंट 4 वेज में किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल रियलाइजेबल लायबिलिटीज जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में आती हैं, जैसे लिखी हमने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सेकंड नंबर, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया,
सेकंड नंबर पर उसका पेमेंट होता है, थर्ड पर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का। अब सेकंड फर्स्ट नंबर की बात करें तो लाइसेंस में केवल एक्सटर्नल रियलाइजेबल लायबिलिटीज आती हैं। सेकंड नंबर पर पार्टनर का लोन, पार्टनर ने यदि फर्म को दिया, इसका मतलब वो जो सेकंड नंबर पर पेमेंट होगा वो इसके थ्रू पेमेंट नहीं होता, उसका डायरेक्ट पेमेंट करते हैं बैंक से। तो एंट्री बनती है लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक बैलेंस को घटाकर दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम रोक कर रखते हैं। इसका लास्ट में सबसे ज्यादा एक ट्रीटमेंट और होता है, फिलहाल इस वीडियो में नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। तो फिलहाल इसे रोक कर रखते हैं हम, और ये आपके सामने अकाउंट्स खुल चुके हैं 3। अब जो भी जर्नल एंट्रीज आपकी बननी है रिलेशन कैपिटल और बैंक के थ्रू ही बननी है सारी जर्नल एंट्रीज, और उन जर्नल एंट्रीज के बेस पर ही इन्हें आपस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ये आपस में एंट्रीज बनाकर एडजस्ट होकर तीनों अकाउंट्स भी क्लोज हो जाएंगे। हाँ, एक अकाउंट अभी और भी क्लोज हुआ है, हो सकता है कहीं इससे भी रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बन जाए, इसका अकाउंट का पेमेंट डायरेक्ट होता है, लेकिन अभी हमें वेट करना है, जब क्लोजिंग करेंगे ना तब इसका पेमेंट करके दिखाएंगे यदि पेमेंट करना हुआ तो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पेमेंट किया था डायरेक्ट। अब फिर से बात करते हैं, जब हम सॉल्यूशन करते हैं 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द फॉर्मेट। सेकंड, बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड स्टेप, एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन टू रियलाइज द असेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ स्टार्ट द एडजस्टमेंट्स। रीता जो पार्टनर है, to 25% of the stock at a discount of 20% in the settlement of a loan। देखिए, जब लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब कोई असेट और लायबिलिटी आपस में एडजस्ट होती हैं तो उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर नहीं करना, क्योंकि असेट और लायबिलिटीज आपस में एडजस्ट हुई, ना तो बैंक पर कोई फर्क पड़ता है, ना बैंक इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज, ना किसी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हुई ना डिक्रीज। तो एक अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? कुछ नहीं। तो ऐसी तो एडजस्टमेंट्स को छोड़ दिया जाता है जो आपस में एसेट्स और लायबिलिटीज एडजस्ट होती हैं। मैं फिर से बोलता हूं, क्यों? ना तो इससे, क्योंकि एक एसेट्स और लायबिलिटीज आपस में एडजस्ट हुई है, ना तो बैंक पर कोई फर्क पड़ा, बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ ना डिक्रीज, ना ही कोई कैपिटल पर कोई फर्क पड़ा है, ना इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज, ठीक है। तो आपस में आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो एक अकाउंट से जर्नल एंट्री नहीं बनती, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और दूसरा जो फैक्ट था वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनको छोड़ने पर भी नेट इफेक्ट वही आता है प्रॉफिट या लॉस का, जो आपके माइंड में फिलहाल आ रहा होगा, इसको सोल्व करें, ठीक है। हो सकता है हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के लास्ट में आपको इस पर थोड़ी सी एक एक्सरसाइज आज फिर से करा देंगे, इसका रिवीजन करा देंगे इस एडजस्टमेंट का, कि आपस में असेट और लायबिलिटीज एडजस्ट होती हैं तो उसकी को जर्नल एंट्री कोई क्यों नहीं बनती, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जाता। नेक्स्ट, बुक डेब्ट्स मींस डेटर्स। डेटर्स रिलाइज हो गए 54,000 के। स्टॉक जो बचा हुआ स्टॉक है, मैंने आपको एडजस्टमेंट शॉर्ट में लिखी हुई है। द रिमेनिंग स्टॉक वाज रिलाइज एट द कॉस्ट प्लस 30% ऑन द कॉस्ट। देखिए, स्टॉक था टोटल आपका 75,000 का, 75,000 का स्टॉक था, उसका 25% माइनस करने के बाद जो बचता है बैलेंस, उस बैलेंस पर 30% ऐड कर लीजिए, कह रहे ना, रिमेनिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है उस पर 30% ऐड करने के बाद स्टॉक बेच दिया, यानी इसका 3/4 जो स्टॉक बचा उस पर आपने 30% का प्रॉफिट ऐड करा और बेच दिया, तो वो कैश आया प्लस बुक डेब्ट्स यानी डेटर्स से 54,000 है, प्लांट मशीनरी से 75,000 और लैंड एंड बिल्डिंग से 1,25,000 और गुडविल से 30,000। टोटल आपने देखा कि आपके पास जो कैश आया इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को यहां क्रेडिट कर दिया और बैंक को साथ के साथ डेबिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,52,125, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे
क्रेडिटर्स की सी एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स एट 10% डिस्काउंट बीपी फुल। मैंने शॉर्ट में लिखी हुई एडजस्टमेंट में फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा होता क्रेडिटर्स वर रियलाइज्ड एट 10% डिस्काउंट एंड बीपी वर रियलाइज्ड एट देयर फुल बुक वैल्यू। मींस आपके जो क्रेडिटर्स थे और उस 75,000 के उसका 10% 7500 माइनस करने के बाद 67,500 पर आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया और बिल्स पेबल पूरे 30,000 पर आपने पेमेंट किया। तो दो पेमेंट हो गए, एक तो ये और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट। तो टोटल आपके 3 पेमेंट्स हुए और पेमेंट्स होने पर आपके बैंक बैलेंस कम हो जाता है। बैंक कम होगा तो क्रेडिट कर दिया जाएगा, जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बैंक में आपने लिखा, डिटेल में लिख दिया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टोटल पेमेंट। ठीक है, क्रेडिटर्स पर आपने डिस्काउंट दी है 10%, तब पेमेंट करना है। बीपी को पूरा 30,000 बुक वैल्यू पर पेमेंट करना है। लाइसेंस एक्सपेंसेस आपके 50 to 150 रुपीस का पेमेंट करना है। तो 3 पेमेंट्स, जर्नल एंट्री कॉमन है इसलिए एक साथ लिख देते हैं हम, लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन द ब्रैकेट यू राइट हियर टू डिस्क्लोज द टर्म क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, एक्सपेंसेस टोटल रुपीस 10। अब आपकी सभी एडजस्टमेंट हो गई एफ को छोड़कर। अब एफ एडजस्टमेंट क्या कहती है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आपस में एडजस्ट हो गई। मींस जब डिसोल्यूशन हो रहा था तो कुछ आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स नजर आए फर्म के अंदर पार्टनर्स में, अरे वाह ये तो फायदा हो गया। वहीं कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नजर आई, अनरिकॉर्डेड जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं थी, अरे ये तो नुकसान हो गया। अब वो मैंने अमाउंट जानबूझकर नहीं लिखी, अब इनके अमाउंट आपस में कुछ भी सही, आपस में दोनों के अमाउंट कुछ भी सही, आपको तो ये देखना है असेट्स और लायबिलिटीज आपस में एडजस्ट हो चुकी हैं, फर्म के बैंक पर या कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको छोड़ दिया जाए, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये वाली एडजस्टमेंट और ये वाली एडजस्टमेंट हम अभी डिटेल में एक एग्जांपल लेकर बाद में समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए केवल। ठीक है, अब आपने ये सारी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट कर डाला, इन एडजस्टमेंट्स को हटा देते हैं। ध्यान से देखते रहें कौन कौन सी एडजस्टमेंट हटा रहे हैं। अभी गुडविल वाली छोड़ देते हैं, उसका रीजन है बताएंगे अभी। अभी आपने देखी फर्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें था कि रीता, फर्स्ट एडजस्टमेंट थी ए आपकी, रीता ने 25% स्टॉक कुछ वैल्यू लेस पर ले लिया और अपने लोन का सेटलमेंट कर लिया, फुल सेटलमेंट। तो लायबिलिटी और एडजस्ट आपकी स्टॉक एसेट एडजस्ट हो गई, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना। पर आप एक बार ध्यान से सुने, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दिया है, फर्म की लायबिलिटी है, तो उसका पेमेंट डायरेक्ट होगा, एंटी बनती है लोन डेबिट टू बैंक। पर जब आप इस फर्स्ट एडजस्टमेंट को देख रहे हैं क्वेश्चन में या अपनी बुक में, तो आपको नजर आता है कि यहाँ तो फर्म का कुछ फायदा या नुकसान हो रहा है, इसमें कहीं भी बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, रिलायजेशन में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसलिए इसको कम से कम आप यहां पर रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, भले ही इसके रियलाइजेशन का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और इसमें यहां स्टार बना देते हैं, रीजन है। मैं फिर से बोलता हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस अकाउंट को क्लोज करना है। लाइसेंस अकाउंट, लोन अकाउंट क्रेडिट होता है तो इसको डेबिट किया जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट। और ये पार्टनर है, डेबिट तो करना है। अब क्वेश्चन आता है तो बैंक से करते हैं हम, बैंक बैलेंस को कम करके दिखाते हैं, ठीक है, यही बताया था और यही होता है। लेकिन आपको इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी जिसमें आपको लिखा है कि लोन असेट के साथ एडजस्ट हुआ है। रीता ने अपने लोन के लिए कुछ एसेट ले ली,
या और इसमें कुछ फायदा नुकसान हुआ है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट तो किया, लेकिन बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्रेडिट किसको किया? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये रहा। और इस तरीके से क्लोज किया था जैसे क्रेडिटर्स और बीपी क्लोज किए, लेकिन क्रेडिटर्स और बीपी को आपने रियलाइज करके तो दिखाया, इसको रियलाइज करके कुछ नहीं दिखाना है, असेट और लायबिलिटीज आपस में एडजस्ट हुई है। मींस यहां पर केवल ये क्लोज होने के लिए लिखा गया है और इसकी रियलाइजेशन की कोई एडजस्टमेंट एंट्री या जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बनी है। तो अब इसको साफ कर देते हैं, ये हटा देते हैं, अब इसमें कुछ नहीं बचा ऐसा। मैंने यहाँ रीजन बताया आपको कि लोन यहाँ क्यों लिखा गया, डायरेक्ट पेमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके रियलाइजेशन में कुछ फायदा नुकसान हो रहा था, इसलिए यहाँ लिखा। रियलाइज करके क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये लायबिलिटी, फर्म की जो लायबिलिटी है असेट लेकर गई है, एडजस्ट हुई है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ बेटा आपको एक ही लाइन को बार बार, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स में बोलने से कोई चीज बार बार वो समझ में आ जाती है, और यदि आपको कई बार समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखा करो, कुछ वर्ड्स का रिपीटेशन होता है तो समझ में आ जाती हैं चीजें। नाउ इस पर हम अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे एक एडजस्टमेंट पर। नाउ द फोर्थ स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन, आई रिपीट द फर्स्ट स्टेप, रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन एंड क्लोज द फॉर्मेट। सेकंड स्टेप बैलेंस शीट, थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन, फोर्थ स्टेप क्लोजिंग। फोर्थ स्टेप क्लोजिंग, क्लोजिंग कहां से स्टार्ट होती है? रियलाइजेशन से, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद बैंक। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, आज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है बुक के अकॉर्डिंग। आप क्या करते हैं, क्रेडिट का टोटल किया माइनस डेबिट का टोटल कर दिया, आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया, ये आपका आया 1,51,375। और आपको बताएं बैंक में आपने गुडविल को रियलाइज किया है, तभी आपका बैंक बैलेंस ये आया है और गुडविल ये बनी है, ठीक है। अब इसके बाद आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाना शुरू किया। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाना शुरू किया तो ये आप पहले से लिख चुके हैं, रियलाइजेशन का प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देता है। एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीतास कैपिटल टू शोभास कैपिटल, इनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया रियलाइजेशन के प्रॉफिट से। ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका टोटल किया आपने क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल किया, माइनस कर दिया डेबिट साइड का टोटल 10,000, इसको पेमेंट बन गया 1,07,687। और ऐसे इसका टोटल किया, माइनस कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपको बता दें क्वेश्चन में मिस्टेक है, फिलहाल मिस्टेक हम भी कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस आंसर को मिलाने के लिए मिस्टेक कर रहे हैं फिलहाल, डेलिबरेटली, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से देखो, आपने इसका क्रेडिट साइड का टोटल किया -30, ये फर्म की गुडविल माइनस कर दी और बैलेंस बच गया ये। अब आपने जर्नल एंट्री बनाई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये क्या है आपकी बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आपने बैंक से पेमेंट कर दिया जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये आपका ओपनिंग बैलेंस था बैंक का, ये कैश से आया, और ये बैलेंस आया आपके असेट्स रियलाइज करके बैंक अकाउंट डेबिट, और ये रियलाइजेशन से यहाँ से आया है पेमेंट करके। लायबिलिटीज का पेमेंट करते तो बैंक बैलेंस कम हो जाता है, ये रहा। अब इसकी कैपिटल का पेमेंट कर दिया, एंट्री बनी कैपिटल डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट, ऐसे इसकी कैपिटल का पेमेंट कर दिया। तो आपका ट्रीटमेंट ये आ गया टोटल। और बता दें जितना कैश हमारे पास ओपनिंग था, जितना कैश आया उसका टोटल, जितना कैश हमारे पास ओपनिंग था और आया टोटल बैलेंस, उससे ज्यादा हम ना तो खर्च कर सकते हैं ना उससे कम। मींस इस साइड का टोटल हमेशा इक्वल होगा इस साइड को। यदि कहीं ये दोनों मैच नहीं करे तो समझे मिस्टेक है ऊपर से नीचे तक। जब आपने इसका टोटल किया तो ये निकल कर आया 3,00,000
58,125। अब आप ध्यान से देखें, इसका 3,88,125 और इसका 3,58,125। मींस कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में। कहे दे तो क्वेश्चन में, कहें तो सॉल्यूशन में। हाँ बच्चों, जब आप इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर बुक से देखेंगे तो आपका ये आंसर मैच करेगा, ये वाला मैच करेगा, लेकिन ये मैच नहीं करेगा। उसका रीजन है, क्या रीजन है? कि जब कोई पार्टनर गुडविल ले जाता है, रीता वो कह रही है मैं फॉर्म का यूज कर लूंगी, तो स्पेशली कैश लाकर क्यों देगी? वो स्पेशली कैश लाकर नहीं देगी, इसलिए वो क्या कहेगी जी मेरी कैपिटल में से तुम कर लो। जब वो कैश लाकर इतना नहीं देगी तो ये प्रॉफिट भी नहीं आने वाला, जो कि बुक में आंसर दिया हुआ है। फिलहाल हमने सोच लिया ठीक है वो कैश स्पेशली लाकर दे देगी, कैश बढ़ा दी, ठीक है फॉर्म का प्रॉफिट आ गया ये। पर जब वो लाकर यदि दे देगी तो उसकी कैपिटल थोड़ी ना घटाई जाएगी। एक तो वो गुडविल के लिए कैश ला रही है, ऊपर से आप उसकी गुडविल घटा रहे हो, तो ये आप यहां पर नहीं लिखेंगे। और जब नहीं लिखेंगे तो बुक से आपका ये आंसर मैच नहीं करेगा। बुक ने ये गलती करी है, बुक में आंसर के लिए इन्होंने उससे कैश भी मंगा लिया और उसकी बेचारे की कैपिटल भी घटा दी। सही ट्रीटमेंट बच्चों ये वाला होता है, जिसमें एंट्री बनाई जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नहीं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप इसे यहां ये ना दिखाकर इसे 22 का दिखाएं और यहां दिखाएं बाय रीतास कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, और फिर आप यहां पर भी 22 का दिखाएं। ये सही ट्रीटमेंट है। ठीक है, यहां पर आप क्या दिखाएंगे कि वो उसकी कैपिटल घटाएंगे। एग्जैक्टली वो कैपिटल गुडविल का पैसा अलग से नहीं लाएगी, तो एंट्री बनेगी रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म का फायदा है तो रिलेशन को क्रेडिट करा, तो ये आपका आंसर मैच कर दिया बुक से ही। अब उसकी कैपिटल को कम कर दिया, ठीक है, तो ये सही सॉल्यूशन था। तो अब आप लिखते ठीक है ये बुक से मैच कर गया, हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट। अदरवाइज कैश का दिखाते कि कैश लेकर आएगी तो ये गलत होगा। ठीक है, कैश लेकर आएगी तो उसकी कैपिटल को घटाना नहीं है, फिर कैपिटल बढ़ जाएगी इसकी, यहाँ 1,77,687 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहां पर देखो, अब इसका टोटल जो बुक में दिया हुआ है 3,88,125 ये नहीं आएगा, ये केवल कितना आएगा 3,58,125 आएगा, क्योंकि यहां से आपका कैश कम आया। समझ गए? मैं फिर से बताता हूं, आपके दोनों सॉल्यूशन ठीक है, सही है, लेकिन ज्यादा कौन सा सही है पहले वो सुने। ज्यादा सही ये वाला है बच्चों कि आप क्या करते हैं, जब रीता एक पार्टनर है वो कह रहा है फर्म का यूज हम कर लेंगे, फर्म की गुडविल का इसका नाम हम इस्तेमाल करेंगे, रीता कह रहे हैं, तो ठीक है मैं इसके लिए 30,000 बियर करने के लिए तैयार हूँ, मेरी कैपिटल घटा दो, और फर्म का फायदा हो गया। एंटी रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया रीता की कैपिटल के नाम से, आपने ब्रैकेट में लिख दिया गुडविल, ब्रैकेट में लिख दिया गुडविल, और रीता की कैपिटल को घटा दिया ब्रैकेट में गुडविल। ठीक, इतना समझ में आ गया? मेरी कैपिटल घटा दो, ठीक है। अब इस तरीके से आपका बैंक बैलेंस कम आएगा कि असेट्स में आप केवल क्या चीजें रियलाइज हुई, स्टॉक, डेटर, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और यही आपने बैंक बैलेंस बढ़ाया ये 3,22,125। अब आपका ये भी आंसर मैच कर रहा है बुक से। जब आप इससे उसकी कैपिटल को घटाते हैं
तो आपका ये भी मैच करता है बुक से, ये आ गया। अब दोनों अकाउंट को मैच करें, यदि आपका सही है सॉल्यूशन तो सारा का सारा दोनों टोटल मैच करेंगे, अदरवाइज नहीं। हमने देखा 30 + 6 + 3,22,000 बैलेंस आया ये, और इस साइड का भी पेमेंट ही आया, दोनों के टोटल मैच कर गए, इसलिए सारा सही है हमारा सॉल्यूशन। लेकिन बुक का गलत आएगा, बुक में आपको दिया है 3,88,125, वो गलत है। वो उसने क्या करा, कैश भी मंगा लिया, यानी कैश बढ़ा भी दिया तो यहां बढ़कर आएगा, और उसकी कैपिटल को भी कम कर दिया, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत होता है, इसलिए बुक का आंसर गलत है। 3,88,125 कैश का आंसर नहीं आएगा। I hope that you have got all this question. Now the last thing, see here. ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस क्वेश्चन से अलग है, कॉमन कॉन्सेप्ट है जो पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। माना आपने कोई रिलेशन अकाउंट बनाया और उसमें आपको कोई भी असेट दी हुई है 10,000 की, और एक लायबिलिटी दी हुई है क्रेडिटर्स 25,000 का। आपने रिलेशन अकाउंट में असेट इसलिए लिखते हैं यहाँ कि ताकि सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाए, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और लायबिलिटीज यहाँ इसलिए लिखते हैं ताकि लायबिलिटीज अकाउंट भी क्लोज हो जाए, एंटीमनी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एडजस्टमेंट यदि कहती है कि लायबिलिटीज और असेट्स आपस में एडजस्ट हो गई, तो देखो इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, और ना करने से भी आपको साफ पता चलता है कि ठीक है 25,000 की लायबिलिटीज थी, 10,000 की एसेट्स थी, दोनों आपस में एडजस्ट हो गई, 15,000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है। कोई बिना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए हुए भी आपको 15,000 का गेन नजर आता है, और यदि यही 8,000 रही होती और एडजस्टमेंट कहती है 8,000 के क्रेडिटर्स ने सारी के सारी एसेट्स ले ली फुल सेटलमेंट में, या क्रेडिटर्स 8,000 के थे, असेट ले गए 10,000, ये तो लॉस हो गया 2,000 का। कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं भी करते हैं तो देखो आपको दोनों का डिफरेंस 2,000 नजर आ रहा है। अकाउंट्स क्लोज हो चुके थे, ना तो बैंक पर फर्क पड़ा ना ही कैपिटल पर फर्क पड़ा, इसलिए कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए मैंने बताया था। और यदि आप वैसे भी देखते हो कि ऐसे ही छोड़ दो तब भी नेट इफेक्ट 2,000 का लॉस नजर आ रहा है। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट। I hope that you have got the question, the solution. If you like the video, give a thumbs up if you like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.